Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to revise the chapter. So, आपने अभी तक जितने भी notes prepare किए हैं, now is the time to make them proper. And कोई भी चीज़ अगर छूट गई है तो make sure you note them down. And maybe कुछ नया आपको कुछ समझ में आए या फिर maybe आपको कोई फैक्ट और पता चले देन यू कैन डू दैट, यू कैन नोट दैट डाउन इन योर नोटबुक. ठीक है, तो हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं. दिस इज द टाइम यू कैन रिवाइज योर होल चैप्टर एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. सो यू नीड टू डू द रिविजन विद मी. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, ये जो रिवीजन है ये आपको हेल्प करेगा आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके जो ओलंपियाड्स हैं उनको क्रैक करने में भी हेल्प करेगा. So it would be better to do the revision, all right? And if you want to join us for the DPPs and study material, you can join our Telegram channel. That is TTB08. You have to write this TTB08 in the search box of the Telegram app. Then drop down list में 8th class का channel appear हो जाएगा. You can join that channel and access all the DPPs and study material available over there. All right, along with the notifications of the video classes. All right, now see, this is a team which is putting so much of their hard work into this, you can say, series, and you can get all the necessary and all the important in the all the topics you need to crack the school examination as well as the Olympiads in this playlist. All right, you can in the video series. All right, so basically you can do that, you can watch these video lectures, you can get up to the maximum advantage of these video lectures as these are free for everybody. Right, तो सबसे पहले तो आप देखिए इन lectures को and then study from these lectures. आप अपने school examination के लिए, Olympiads के लिए prepare कर सकते हैं. And remember to share this video and the other videos also from the series with your friends so that they can also watch these video lectures and उनके भी जो goals हैं related to study they can crack them. Alright, so you need to make sure that you do have to, alright, you do have to watch first, because first of all you need to be sure about your you can say your goals assurance. ठीक है भाई कि तुम उसको पाल ही लोगे, that means right that. तो फिर for that you need to watch these video lectures first and then you have to share it, right, while you can do that. Right. Alright. So, and also in accordance to that, we have prepared some packages for you all. So, if you want to join us and if you want to stay with us, then you can also join our packages over there. And to access those packages, you need to go on our website, that is www.talkingtextbooks.in. So, when you go on our website, you are going to get two type of packages over there. The full package and the test series. All right, and the full package contains all the minimum necessary things you need to crack the examination, and that is why these are the important one, right? That is why these are the important one. You will be getting the study material, you will be getting the video classes, you will be getting the homework submission feature, you will be getting the bi-weekly quizzes, you will be getting the periodic test papers. राइट, तो ये आपका पूरा ही प्रोसेस है, स्टडिंग पार्ट, होमवर्क पार्ट एंड देन टेस्टिंग पार्ट. राइट, तो ये आपको पूरा प्रोसेस जो है आपके सामने है एंड यू आर गोइंग टू डू दैट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर. Alright, and if you don't want to join that but you want to test yourself, then you can join the test series. You will be getting the periodic test papers, recorded live classes, bi-weekly quizzes, right? So you will be getting all the things over there for the test series also and the full package, right? And if you want to buy them, then you can use my code for the 30% discount, and the code is CYLive. To get a 30% discount, you can use my code. Alright, and the next thing I want to tell you is that you can call us on the number 919549041111 so that all your queries regarding these packages over there will be helping you in that. Alright, that is the good thing, right? You can do that. Next, let's see what we are going to do today. We are going to revise all the things we have studied till now in this chapter. So promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Alright, that is the most thing. आज का रिवीजन तो है ही है, but उसके अलावा भी आपको रेगुलर रिवीजन करना है. ओके, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये हमारा लास्ट लेक्चर है, रिमेंबर. इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स आपको
याद होने चाहिए, ठीक है, आपको पता होने चाहिए। मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि अब जो है कोर्स कंप्लीशन हो चुका है। सो नाउ इज़ द टाइम जब आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जब आप अपने पुराने सारे चैप्टर्स को वापस से एक बार सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द गुड थिंग। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्स ओवर देयर, ठीक है। सो हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले जाना था। सो बेसिकली जो यूनिवर्स है दैट इज़ यू कैन से अ वास्ट स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर गैलेक्सीज एंड स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, और दी अदर गैसेज ओवर देयर, इंटरस्टेलर मैटर, ये सब एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली इट इज़ अ प्लेस, नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट। इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर. And when we do study about the universe, about the outer space, about different planets, about sun and all, that means we study the things which are outside the earth. We call that branch of science as the astronomy. Okay? And we do study all the different instruments by which we can observe the phenomena and the objects in the outer space. And those can be like telescopes is the most famous one. ठीक है, तो आप ये टेलीस्कोप्स की हेल्प से, दिस दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, राइट, तो उसकी हेल्प से यू कैन वॉच आउट टू ऑल दी phenomenas out there, all the objects, you can study all the objects over there. That is the cool thing, right? So that branch is known as the astronomy over there, ठीक है। फिर हमने देखे थे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं, व्हाट आर दीज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मीन्स द वेरी 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 वास्ट डिस्टेंस, राइट। ऐसा नहीं है फ्रॉम आवर हाउस टू अनदर वन, ये तो सिर्फ फ्यू मीटर्स और फ्यू किलोमीटर्स होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वास्ट यूनिवर्स, उसमें एक स्टार से दूसरे स्टार तक का जो डिस्टेंस है और हमारी अर्थ से लेके बाकी जितने स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस और दी अदर प्लैनेट्स का डिस्टेंसेस, ये बहुत बड़े डिस्टेंसेस हैं। किलोमीटर इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट फॉर दैम, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग क्या करते हैं और भी ज़्यादा डिस्टेंसेस और वेरी वास्ट डिस्टेंसेस को यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस दैम, ठीक है। जिसमें से पहला हम लोगों ने देखा था लाइट ईयर। लाइट ईयर जो कि है, लाइट ईयर के अंदर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। मतलब इतने सारे किलोमीटर्स 1 लाइट ईयर में होते हैं, राइट। सो देखिए लाइट ईयर का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज अ वेरी वास्ट डिस्टेंस, राइट। क्योंकि आपको पता है कि सन से लेके अर्थ तक 8 मिनट्स में लाइट पहुंच जाती है। सो रिमेंबर, आप ये सोच सकते हैं इस बात को कि 1 ईयर में वो कितना ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी होगी, राइट। एंड सोचिए, दिस इज द astronomical distance, is a very large distance. And then comes the distance which is greater than the light year. This is known as parsec, ठीक है। And this parsec is equal to 3.26 light years. Mean when we join 3.26 light years together, we get a distance known as the parsec. Then comes the light minute. 1 minute में light कितना distance travel करती है, that is known as the light minute. Alright, चलिए नाउ हम लोगों ने उसके बाद जो है डिस्कस किया था स्टार्स के बारे में, व्हाट आर दो स्टार्स। सो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था कि जो स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़ी बॉडीज होते हैं, राइट, बहुत बड़ी बॉडीज होते हैं, और वो ज़्यादातर हॉट गैसेस जिसमें मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है, राइट। दे आर वेरी 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 बिग एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर. Also they are having own their light, ठीक है। That means because of their high temperature they emit light, so they have their own light which they emit, right, and they are very 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 far away from us, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही स्टार है जो काफ़ी करीब है, that is sun. उसके अलावा जितने भी स्टार्स आप देखते हैं they are very far away from us and that is why we see them as a point, right. So हम लोगों ने ये देखा था कि ज़्यादातर क्या होता है, पूरे के पूरे स्टार में वो हाइड्रोजन का बना होता है, right. And when the hydrogen atoms combine we get a helium atom, and helium atom के साथ साथ we get tremendous amount of energy, and that energy is there as in the form of the temperature, right, and you can say as a light and the heat energy over there, right. So the star is made up of very much of hot gases over there.
ऑलराइट, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द स्टार्स कि भाई जो कलर्स हैं वो भी किसमें किस तरीके से चेंज होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल हम लोग जैसे किसी मेटल को हॉट करते हैं, किसी मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो अलग अलग कलर्स का हो जाता है. ठीक है, जैसे देखिए मेटल पहले रेड हॉट होता है, ठीक है, रेड ग्लो कलर देता है, एंड देन ब्राइटर होते जाता है, येलो होते जाता है, देन वाइट हॉट हो जाता है. लेकिन इसके ठीक इन्वर्ट होता है स्टार्स में. ठीक है, सो इट वुड बी लाइक वाइट हॉट सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होने पे और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे होने पे फिर ज़्यादा वो रेड हॉट हो जाता है. सो बेसिकली आप ये सन से देख सकते हैं, सन इज़ अ येलो स्टार, और जो सन है उसका आउटर जो टेम्परेचर है दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस. सो यू कैन गेट टू दैट इट इज़ अ येलो स्टार, राइट. देन यू कैन से कि जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं ये हमें ज़्यादातर कैसे दिखाई देते हैं, ईस्ट से जाते हुए वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, राइट. द रीज़न इज दे आर नॉट मूविंग एट ऑल, राइट. तो वो इतना ज़्यादा दूर है कि वो जितना डिस्टेंस मूव करते हैं हमें पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है दैट दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ अस. वाई सो? बिकॉज देखिए अर्थ जो है वो कैसे रोटेट कर रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, एंड दैट इज द रीजन कि सारे स्टार्स हमेशा ईस्ट से लेके वेस्ट तक दिखाई देते हैं. इसी वजह से हमारा जो सनराइज है वो ईस्ट में होता है और सनसेट होता है वेस्ट में. रीजन इज द रोटेशन ऑफ अवर अर्थ. ठीक है, ऑल्सो स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. वाई सो? वाई दे डू ट्विंकल बिकॉज द लाइट कमिंग फ्रॉम दैम इज कमिंग फ्रॉम वेरी वास्ट डिस्टेंस, बहुत दूर से आ रही है, राइट. एंड दैट इज द मेन रीजन कि क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही है, दैट इज वाई जब वो हमारे एटमोसफेयर में एंटर करती है, सो हमारा एटमोसफेयर इज नॉट स्टिल नहीं है, राइट. इट कंटिन्यूसली ब्लोइंग अप फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर. ऑल्सो वी हैव वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर हैविंग द टेम्परेचर डिफरेंस, right. So when the starlight coming from the outer space enters into the atmosphere of the earth, it gets refracted and we seem it like to be unsteady. ठीक है, हमको unsteady नजर आती है, and that is why they seem to twinkle, right. This is the only reason we have. ठीक है, पहली बात क्यों हमें पॉइंट साइज दिखाई देता है, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, वेरी 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 फार अवे. ठीक है, हमारे पास जो है वो सन है, दैट इज वाई वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भाई ये जो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज होते हुए नहीं दिखाई देता. रीजन इज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि अगर वो दो स्टार्स दूर भी जा रहे हैं तो भी हमको पता ही नहीं चलेगा. इतने ज़्यादा दूर है कि उनके बीच का डिस्टेंस हमें पता भी नहीं चलेगा, हम लोग उसको सेंस ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड दे आर लाइक मूविंग वेरी 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 फास्ट अवे फ्रॉम ईच अदर. वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव करते हुए दिखाई देते हैं स्टार्स, बिकॉज हमारा अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करती है, वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सो बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन वी गॉट द व्यू कि भाई स्टार्स ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं. ठीक है, बट दिस डज नॉट हैपन एट ऑल. फिर देखिए ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार अपना पोजीशन चेंज क्यों नहीं करता है, बिकॉज ये जो ध्रुव तारा है वो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल हमारे नॉर्थ पोल के बिल्कुल सीध में है, मतलब बिल्कुल नॉर्थ पोल के बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है. एंड दैट इज द रीजन हमारी अर्थ इसके अबाउट रोटेट करती है. तो ये वाला पोजीशन स्टेज द सेम फॉर होल अर्थ. ठीक है, ये वाला पोजीशन स्टेज द सेम, एंड दैट इज द रीजन कि हमें पोल स्टार मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता. ठीक है, देन भी देखो क्या है कि किस तरीके से पोल स्टार ट्रैवलर्स और सेलर्स को रात में मदद करता है. सो देखो क्योंकि पोल स्टार बिल्कुल भी मूव नहीं करता, कॉन्स्टेंटली आपको एक ही प्लेस पर दिखाई देगा. सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू पॉइंट आउट कि भाई उस डायरेक्शन में है नॉर्थ, पता चल जाएगा तुम्हें डायरेक्टली. एंड दैट इज हाउ दैट पोल स्टार हेल्प्स द ट्रैवलर्स एंड सेलर्स एट नाइट, क्योंकि उन्हें एक डायरेक्शन तो पता होगी. रिमेंबर जब वो पोल स्टार को ऑब्जर्व करेंगे वो देखेंगे वहाँ पर नॉर्थ है, तो उसे पता चल जाएगा ठीक इसके अपोजिट विल बी द साउथ, है ना, और ठीक उसके इस डायरेक्शन में वुड बी द वेस्ट एंड दिस साइड वुड बी द ईस्ट. दैट वुड बी सो मच यू कैन से फिक्स डायरेक्शन. तो इस तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि भाई वो एक्चुअली में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं. एंड दैट वुड बी कूल थिंग, राइट, कि वो नेचर से दे कैन गेट अप द डायरेक्शंस एंड दे कैन मूव अप टू द थिंग. Which is the nearest star to the earth? Sun is the nearest star, and the next near is the Proxima Centauri or the Alpha Centauri.
ठीक है। फिर देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जो सन है, ठीक है, उसकी लाइट हम तक 8.3 लाइट मिनट्स में पहुंच जाती है, ठीक है, 8.3 लाइट मिनट्स में पहुंच जाती है, ठीक है। एंड हमें पूछा है कि अगर ऐसा होता है तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो सिंपली हमने 1 लाइट मिनट को देखा कि भाई कितना किलोमीटर होता है, 8.3 लाइट मिनट्स में हमने देख लिया कि भाई इतना किलोमीटर होता है। वी जस्ट डिड दी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन एंड दैट्स इट। ऑलराइट, फिर देखिए हाउ फार इज द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड द अल्फा सेंचुरी को। उसके बाद देखो हमने पहले देखा कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। अगर वो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है और मुझे अगर 1 लाइट ईयर का किलोमीटर में कन्वर्जन पता है तो मैं आराम से 4.3 लाइट ईयर को कन्वर्जन कर सकती हूँ किलोमीटर में, एंड दैट वुड बी इजी। ऑलराइट, सो वी कैन डू दिस। चलिए अब हम देखते हैं गैलेक्सीज एंड कॉन्स्टेलेशंस जो हमने देखा था। सो वी टॉक्ड अबाउट गैलेक्सी, व्हाट इज दैट। सो देखिए गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, अबाउट 10 की पावर 11, ठीक है, 10 की पावर 11 stars, and that would be like 100 billion stars over there. So it would be a vast collection of stars, and those stars are bounded by the gravitational forces. Alright, so they are not, they are, you can say it is the building block of the universe. This galaxy is the building block of the universe. So this universe is actually made up of the you can say the galaxies over there, and you can say that there are 100 billion galaxies over there. So you can get up to the total number of stars in a universe, and what it would be 10 की power 22. We have calculated how number of stars in one universe is equals to number of galaxies multiplied by the number of stars in one galaxy. You are going to get 10 की power 11 multiplied by 10 की power 11, and then total you will be getting 10 की power 22 stars over there. Alright, now let's move up to the next thing. हमारे जो सबसे दो important galaxies हैं वो कौन कौन सी galaxies हैं? Those two galaxies are the Milky Way and the Andromeda galaxy. Milky Way जिसमें हम रहते हैं, and the Andromeda galaxy nearest to us, right? That is why these are two important one. And now see the classification. So देखिए हबल नाम के जो हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने क्या किया था, जो गैलेक्सीज होते हैं शेप के बेसिस पे उन्होंने उनको क्या किया था, उनको यू कैन से क्लासिफाई किया था। 3 तरीके के उन्होंने शेप देखे थे, एंड अभी तक जितनी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, उसमें से 3 शेप हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिले हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल, इर्रेगुलर। स्पाइरल शेप में यू आर गोइंग टू गेट द स्पाइरल शेप ऑफ द सिंपल गैलेक्सी, right? So you are going to get the spiral shape. Basically you will be seeing the shape, and then you can get up to the elliptical. Elliptical will be like it would be like 3D, ठीक है, ellipsoid भी हो सकता है, elliptical भी हो सकता है, right? Then comes the irregular. Irregular means ये totally irregular है, that means it does not have any type of shape over there, ठीक है। So these were the 3 types of galaxies. Now let's talk about the spiral galaxy. स्पाइरल गैलेक्सी जो है काफ़ी यू कैन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करती है, ऐसा जो है माना गया है, बिकॉज जितने भी गैलेक्सीज अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं उसमें से 80% गैलेक्सीज का शेप स्पाइरल है, एंड दैट इज़ वाई ऐसा बोला जा रहा है कि जितनी भी गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसमें स्पाइरल गैलेक्सीज एंड हमारी जो ओन गैलेक्सी है दैट इज़ द मिल्की वे, वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी का जो डायमीटर होता है वो 20,000 से 100,000 तक के बीच में होता है, ठीक है। लाइट ईयर, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन द लाइट ईयर, ठीक है, इनके बीच में होता है। और हमारी खुद की जो एक यू कैन से गैलेक्सी है मिल्की वे, राइट, दैट इज ऑल्सो अ स्पाइरल वन, ठीक है। और उसके बाद आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं कि स्पाइरल गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं जो पूरा रोटेट करते हैं, वो अरेंज होते हैं in the shape of a spiral, so they are not having a uniform composition, ठीक है, उनको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टार्स वहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो आप बीच में आप देख सकते हैं एट दी सेंटर यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा यू कैन से आपको मिलेगा लार्ज स्फेरॉइडल हेलो, ठीक है, जो कि बहुत सारे स्टार्स का बना हुआ है। स्फेरॉइडल हेलो मीन्स इट वुड बी अ स्फेयर, ठीक है, अ स्फेयर विच वुड बी वेरी 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 ब्राइट, जो कि बिल्कुल सेंटर में आपको एज ए न्यूक्लियस की तरह मिलेगा, एंड ऑल द स्टार्स आर अरेंज अराउंड दिस इन द फॉर्म ऑफ
spiral, and that is the reason you are not going to get perfect distribution. ठीक है, now let's talk about the elliptical one. तो देखिए इलिप्टिकल जो गैलेक्सीज होती है वो इलिप्टिकल शेप की होती है, एंड इनको भी 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, एंड दोज 8 कैटेगरीज आर E0 to E7, E0 to E7. ठीक है, अब देखिए E0 का शेप, ठीक है, E0 का शेप इज टोटली परफेक्टली स्फेरिकल. ठीक है, परफेक्ट स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल यू कैन से. ठीक है, फिर धीरे धीरे अगर हमने उसको थोड़ा सा फ्लैटन कर दिया फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो इट वुड बी शेप ऑफ E1, and then we again do it, it would be shape of E2, then we again do it and it will be a flat one. ठीक है, तो वो जो शेप हमें मिलेगी that would be of E7. so E7 का शेप कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, जितना ज़्यादा वो यू कैन से फ्लैटन होगा उतना ही ज़्यादा उसको अलग कैटेगरी में हम रखेंगे. सो E0 इज़ द परफेक्ट ऑलमोस्ट स्फेयर, E7 इज़ द हाईली फ्लैटन वन. ठीक है, गैलेक्सीज इनका डिफरेंट शेप्स होता है, एंड ये जो इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं ये उसमें डिवाइडेड हैं E0 to E7. दे आर अबाउट 18% ऑफ द टोटल गैलेक्सीज वी हैव ऑब्जर्व टिल नाउ. ऑलराइट, और इनका जो बोला गया है कि भले ही यहाँ पर काफ़ी कम ऑब्टेन हैं, मतलब बहुत ही कम इलिप्टिकल गैलेक्सीज अभी तक मिली हैं एज कम्पेयर टू दी स्पाइरल गैलेक्सी, बट स्टिल ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ इलिप्टिकल गैलेक्सीज ओवर देयर. ठीक है, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, ऐसा माना गया है बेसिकली ऑन दी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. एंड नाउ वी टॉक अबाउट दी इरेगुलर शेप्ड वन. ठीक है, सो ये इरेगुलर शेप गैलेक्सीज जो होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं, दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, और आप खुद से देख सकते हैं ओनली 2% ऑफ दी ऑब्जर्व्ड गैलेक्सीज अभी तक हमें पता चली है. मतलब जितनी भी गैलेक्सीज हमें पता चली उसमें से 2% हैं सिर्फ ये इरेगुलर शेप की गैलेक्सीज. ठीक है, बहुत सारे डस्ट और ब्लू स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं इरेगुलर गैलेक्सीज में. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिल्की वे. हमारा जो मिल्की वे है उसका नाम मिल्की वे क्यों है? उसका नाम मिल्की वे इसलिए है क्योंकि वो हमें मिल्की दिखाई देता है. ठीक है, सो व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम आवर अर्थ वी सी इट लाइक अ मिल्की स्ट्रक्चर, नॉट अ स्ट्रक्चर बट अ लाइट, मिल्की लाइट इज कमिंग फ्रॉम देयर. एंड वहाँ पर इसका जो नाम है दैट इज फ्रॉम वर्ड गाला, दैट इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट्स मीन मिल्क. दैट इज वाई इट्स नेम्ड एज द मिल्की वे. ऑलराइट, एंड हिंदी में हम इसे आकाश गंगा बुलाते हैं. ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, एंड दिस गैलेक्सी इज ऑल्सो कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन स्टार्स, ऑलमोस्ट 100 बिलियन स्टार्स. सो बेसिकली यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपको एक बल्ज नजर आएगा इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, and all the stars are arranged in the form of spirals over there, and you are going to get a very much non-uniformly distribution of the stars over there. ठीक है, ऐसा आपको पता चलेगा, and you can see up to that इसका thickness और इसका you can say the diameter. देखो 10 की पावर 4 you can say उसका 10 की पावर 4 तो बीच का यानी कि उसके सेंट्रल पार्ट का थिकनेस है. ठीक है, उसके डायमीटर जो है वो है, एंड 10 की पावर 5 उसका टोटल डायमीटर है, यानी होल स्पाइरल गैलेक्सी का डायमीटर. ठीक है, सन जो है वो किससे, गैलेक्टिक सेंटर से, यानी मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से 2.7 × 10 की पावर 4 लाइट ईयर्स दूर है. ऑलराइट, तो इतने ज़्यादा लाइट ईयर्स वो दूर है बेसिकली. ठीक है, और ये करीबन 1000 लाइट ईयर्स जो है थिक है नियर द सन, इट इज़ वेरी थिक एट दैट. ऑलराइट, जितना भी स्पेस है और ये सब है वो ज़्यादातर इंटरस्टेलर गैसेस, मैटर्स है ना, उन सब से फिल आउट है, एंड 90% ऑफ दिस गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन ओवर देयर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मास. मास जो है हमारा छूट गया. सो यू कैन सी द मास ऑफ द मिल्की वे इज 3 × 10 की पावर 41 kg. दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी. इतना बड़ा है ये मास, राइट. देखिए अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं मिल्की वे, कि देखिए मिल्की वे जो दूर से नज़र आता है, ठीक है, तो वो हमें जो नज़र आता है वी ऑब्जर्व दैट इज़ अ स्पाइरल. ठीक है, और हम लोग बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं कि वो आपको नज़र आएगा एक स्टार. ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टार जो है वो डिस्क की फॉर्म में अरेंज हैं, एंड उस डिस्क में यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्पाइरल शेप बेसिकली, तो वो इस तरीके से आपको नज़र आते हैं. स्टार्टिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, एस्ट्रोनॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि हाउ टू गेट द शेप ऑफ आवर ओन गैलेक्सी बिकॉज वी आर इनसाइड इट.
सो व्हाट दे डिड इज उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल से अलग अलग प्लेसेस से दे captured the photo and they arranged and they calculated from all the data and then they got to know about the spiral shape of the Milky Way galaxy, and that's how we know that we are actually in a spiral shaped galaxy. Okay, so that is all about the Milky Way. All right, now let's talk about the constellations over there. So देखिए constellations क्या होते हैं. जो galaxy होती है वो तो tremendous amount of stars रखती है, but जो constellations होते हैं they have very few amount of stars but and they are having a particular shape or a recognizable shape we can say. So that group of stars which is having a particular recognizable shape, that is known as the constellation, not the galaxy, constellations. Right, till now we have known 88 galaxies over there. ठीक है, और जितने भी कॉन्स्टेलेशंस के अंदर स्टार्स होते हैं वो साथ रहते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता है. राइट, वो वैसे के वैसे एक ही जगह पर रहते हैं. ठीक है, अभी तक 4 नोन कॉन्स्टेलेशंस हैं, ओरियन, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर एंड अ कैसियोपिया. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरियन. तो ओरियन जो है वो हंटर, यू कैन से इट इज नेम्ड एज द हंटर ऑल्सो. You are going to see a Betelgeuse star. This is a reddish star you can see. एक है स्टार रिगल. These are the two brightest one opposite side में होते हैं. 3 stars जो हैं वो बेल्ट फॉर्म करते हैं एंड बाकी के 4 stars जो हैं वो क्या करते हैं, इसका आउटर बाउंड्री जो है वो फॉर्म करते हैं. सो बेसिकली ये हंटर की शेप का होता है. हिंदी में इसे काल पुरुष कहा जाता है. इट इज़ अ यू कैन से अ ग्रुप ऑफ 7 stars जिसमें से काफ़ी 3 जो हैं a group of 7 bright stars and the rest one are very 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 dim over there and 3 जो stars हैं वो belt में हैं, Orion की belts में. Alright, now let's talk about that Ursa Major. So Ursa Major को हम लोग Big Dipper, Great Bear, सप्तऋषि बोलते हैं. You are going to get the 7 stars over here. ठीक है, and also I am going to tell you is that कि ये जो अर्सा मेजर है इसका एक स्टार यानी यू आर गोइंग टू गेट द 1 स्टार. ठीक है, जो एंड स्टार है वो पोल स्टार की तरफ इशारा करता है, मतलब इट ऑलवेज पॉइंट आउट टुवर्ड्स द पोल स्टार. Right, and so it is arranged in the shape of this. It is always going to be arranged in the shape of like this. Okay, you are going to get that, and you can observe this in the summer, mainly in the summer. अर्सा माइनर जो है वो एग्जैक्ट सिमिलर शेप का है अर्सा मेजर के, एंड यहाँ पर एक स्टार यू कैन से जो लास्ट स्टार है वो खुद एक पोल स्टार है, मतलब अर्सा माइनर का पार्ट पोल स्टार है. यू कैन सी दैट. राइट, एंड दी समर में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया जा सकता है. ठीक है, इसे सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर बोलते हैं, लिटिल डिपर बोलते हैं. ठीक है, देखिए किस तरीके से ये जो बड़ा वाला यू कैन से बिग डिपर है एंड यू कैन से दी अर्सा मेजर, इसका लास्ट स्टार जो है पॉइंट करता है पोल स्टार को, और ये जो अर्सा माइनर है उसका लास्ट स्टार ही पोल स्टार है. तो आपको पता चल सकता है दैट्स हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन. ऑलराइट, देन वी टॉक्ड अबाउट कैसियोपिया. तो कैसियोपिया जो है यहाँ पर M और W शेप का है, तो ये एक परफेक्ट शेप नहीं है, लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड शेप है. ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज स्टेज लाइक दिस. ठीक है, इसको भी आप मेनली ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक अप टू द डिफरेंसेस बिटवीन द गैलेक्सीज एंड द कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशंस एंड गैलेक्सीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है बट स्टिल यू कैन गेट अप टू दैट. यहाँ पर आप देखिए गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं बट कॉन्स्टेलेशन में कुछ ही हैं. ठीक है, गैलेक्सीज कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बनाती है बट कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं. गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और इवन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं बहुत सारी. राइट, बट कॉन्स्टेलेशन में सिर्फ 80 पाए गए हैं. ठीक है, कुछ गैलेक्सीज ही नेकेड आइट से विजिबल होती हैं लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस विजिबल होते हैं. सो यू कैन फटाफट आप मैच कर सकते हैं इन सबको.
ऑलराइट, तो हमने कॉन्स्टेलेशंस और गैलेक्सीज के बारे में देख लिया. नाउ लेट्स रिवाइज द थर्ड लेक्चर दैट इज आवर सोलर सिस्टम. सो वी टॉक्ड अबाउट सोलर सिस्टम में जितने भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल सन, प्लैनेट्स, मिटियोर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ये सब के सब जो है फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को. मतलब ये सब चीज़ें सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं. ठीक है, सोलर सिस्टम में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको पता है, जैसे कि सन है सेंटर में एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, ऑल्सो मैनी थिंग लाइक कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड इवन मिटियोर्स, दे revolve around the sun, right? So they are the members of the solar system. And then we talked about sun. So basically sun जो है, we talked about the various things about the sun. See, sun जो है वो सबसे पास है, पहली बात, and it is 150 million kilometer from the earth. सन से लाइट जो अर्थ तक पहुंचती है वो 8 minutes में पहुंचती है. ठीक है, जो डायमीटर का सन है वो अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, एंड इट्स मास इज 333,000 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के मास से. ठीक है, सन ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस से बना है एंड ये हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट हो रही है एंड इट इज़ गिविंग आउट ट्रेमेंडस ऑफ एनर्जी ओवर देयर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें लाइट और हीट एनर्जी जो है सन से मिल रही है. ठीक है, जो सेंटर है सन का एक्सट्रीमली हॉट है और वो 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखता है. आउटर सरफेस जो है वो ओनली 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखती है. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो जो स्टार है सन हमारा वो काफ़ी क्लोज है, दैट इज़ वाई ये हमें ज़्यादा बड़ा अपीयर होता है. ठीक है, बट अगर हम दूसरे स्टार्स की बात करें तो वो तो फिर बहुत दूर है. ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम इसका अल्फा सेंचुरी का. अल्फा सेंचुरी हमें छोटा नजर आता है, हालांकि अल्फा सेंचुरी सन से काफ़ी बड़ा है, पर वो दूर होने की वजह से हमें छोटा दिखाई देता है. ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज हैं सन के ऊपर जो क्या करते हैं, लहरों को बाहर फेंकते हैं. ठीक है, एंड उनको शूट आउटवर्ड करते हैं. बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंसेस बोलते हैं. ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे डार्कर एरियाज भी हैं, ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं. ठीक है, मतलब जनरली हमें आंखों से ऐसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होंगे, बट व्हेन वी लुक अप टू द क्लोज विद द टेलीस्कोप वी कैन गेट अप टू दैट विद सम ऑफ द एरियाज. ठीक है, कुछ डार्कर और कूलर पैचेस नजर आते हैं जो कि 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं, और ये जो यू कैन से डार्कर रीजन्स हैं उन्हें सन स्पॉट्स कहा जाता है, बिकॉज दीज आर द स्पॉट्स ऑन द सन. ठीक है, एंड द मेन थिंग इज सन स्पॉट्स का मतलब क्यों, मतलब सन स्पॉट एक्चुअली में काम क्या करते हैं. बेसिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हमारे साइंटिस्ट एंड ऑल एस्ट्रोनॉमर्स. वाई सो, बिकॉज ये जो हैं सन स्पॉट्स ये हमारे रेडियो सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं. दैट मीन्स वो सिग्नल को लिटिल बिट ऑफ यू कैन से अनक्लियर कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई दे डू सो. दैट इज वाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन दैट. ऑलराइट, वो हमारे बेसिकली ऐसा कर देते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स. सो वी गॉट अप 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में. देयर आर 8 प्लैनेट्स. एक और था, मतलब 9 थे, बट अब सिर्फ 8 रह गए हैं. ठीक है, उसको हमने प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है. सो वी गेट अप टू 8. अब प्लैनेट्स क्या चीज़ होते हैं. प्लैनेट आर द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड प्लैनेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स के बने होते हैं. ठीक है, एंड दे आर ब्यूटीफुल बेसिकली. ठीक है, तो इनका जो ब्राइटनेस है वो किस वजह से आता है, जितनी लाइट सन की इनके ऊपर फॉल होती है वो भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उसी वजह से जो है उनका यू कैन से ब्राइटनेस नजर आती है. उसके अलावा उनकी खुद की लाइट तो होती नहीं है. अब आप आगे देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं हमको काफ़ी बड़े नजर आते हैं, बिकॉज दे आर नियर टू अस, राइट, और वो ट्विंकल भी नहीं होते हैं. सो देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड हाउ यू कैन रिमेंबर दैम. आप उन्हें रिमेंबर कर सकते हैं. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. द प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, ये जो प्लैनेट्स होते हैं इलिप्टिकल ऑर्डर में ऑर्बिट करते हैं सन के चारों तरफ. ठीक है, एंड ये हमारे जो हैं सोलर सिस्टम के वेरी 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 ग्रेट पार्ट हैं. ठीक है, अब देखिए हमने बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्लैनेट्स, हमने उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल एंड द जोवियन प्लैनेट्स ओवर देयर. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर द फर्स्ट 4 प्लैनेट जो कि काफ़ी छोटे होते हैं साइज में.
ठीक है, एंड दे हैव हाई टेम्परेचर एंड दे हैव वेरी मच रॉकी एंड सॉलिड यू कैन से स्ट्रक्चर ओवर देयर। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं जोवियन प्लैनेट्स की। वो लार्ज के 4 प्लैनेट्स हैं। जोवियन प्लैनेट जो है काफी ज्यादा बड़े हैं साइज में एंड दे आर हैविंग अ गैसियस टेक्सचर और द स्ट्रक्चर ओवर देयर। ठीक है, एंड दे हैव वेरी लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट दोज वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट वी टॉक अबाउट मरकरी। सो मरकरी इज वेरी स्मॉल प्लैनेट। ठीक है, काफी ज्यादा छोटा प्लैनेट है, ड्राई हॉट एयरलेस प्लैनेट है। वो उसका जो टोटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है, मतलब आपको हेवी एलिमेंट्स वहाँ पर मिल सकते हैं, आयरन एंड एक्सेट्रा वहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है एंड बेसिकली हम माने तो ये जो है काफ़ी कम कॉमन प्लैनेट है, जो कि हमें कभी कभी मतलब अनकॉमन, दैट इज कभी कभी आपको नजर आ सकता है मॉर्निंग में, तो वी कॉल इट मॉर्निंग स्टार समटाइम्स, राइट। अब हम देख सकते हैं कि भाई 1 डे ऑन मरकरी जो है वो कितना है, 59 अर्थ डेज। ठीक है, और अगर पूरा डे माने यानी दिन और रात को ऐड कर दे तो वी आर गोइंग अप टू दी 175.97 अर्थ डेज एंड दैट इज 1 डे ऑन दैट मरकरी। एंड मरकरी का जो ईयर है दैट इज 88 अर्थ डेज। 88 अर्थ डेज में मरकरी क्या करती है, सन का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्लैनेट दैट इज वीनस। अब ये जो वीनस है ये सन और मून के बाद सबसे ब्राइट बॉडी है। द रीजन बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यू कैन से CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, राइट। एंड इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी क्लाउडी एटमॉस्फेयर है। एंड क्लाउडी एटमॉस्फेयर होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी लाइट फॉल होती है वीनस पर उसमें से 3/4 लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट। तो इसकी वजह से वो हमें काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब ये जो वीनस है ये काफ़ी स्लो रोटेट करता है। ठीक है, इसके इन्वायरमेंट में ज़्यादातर मतलब एटमॉस्फेयर में यू आर गोइंग टू गेट द मोस्ट ऑफ द CO2, अबाउट 96% ऑफ द CO2 इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट इज अ ग्रीन हाउस गैस। एंड दैट इज द रीजन मरकरी वीनस, राइट, वीनस जो है वो मरकरी से भी ज़्यादा दूरी पर है सन से, फिर भी वीनस मरकरी से ज़्यादा हॉट है बिकॉज CO2 क्या करती है, जितना भी हीट उस पर पड़ता है वीनस पर वो उसको ट्रैप कर लेता है। CO2 का काम यही है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है एंड दैट इज द रीजन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये काफ़ी स्लो रोटेट करता है मरकरी। ठीक है, एंड इसका कोई मून नहीं है खुद का। ठीक है, देखिए 1 डे ऑन वीनस 243 अर्थ डेज तक चलता है। ठीक है, और ये हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा यू कैन से दिखाई दे सकता है। इसको हम इवनिंग और मॉर्निंग में देख सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन प्लैनेट दैट इज अर्थ। सो बेसिकली अर्थ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है एंड अर्थ का एक मून है। अर्थ 365 एंड 1/4 डेज में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ खुद के एक्सिस पे 24 आवर्स में 1 रोटेशन करता है। बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवॉल्यूशन हमें बहुत सारे सीजन्स मिलते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये चारों सीजन्स हमें मिलते हैं, राइट। और ये कुछ इस तरीके से रोटेट करती है कि हमारा जो इट इज टिल्टेड, राइट, उसका जो एक्सिस है ना वो टिल्टेड है ऑन दी थ्रू विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं दैट आर टोटली अपोजिट। मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जब ये पूरा सिचुएशन टर्न आउट होती है तो क्या होता है, तो साउदर्न यू कैन से हेमिस्फीयर में अगर समर हो गया तो नॉर्दर्न में हो जाता है विंटर। सो टोटली अपोजिट सिचुएशंस चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन गेट अप टू दैट कि हमें इतने सारे सीजन जो हैं वो इसी वजह से मिल रहे हैं, right? Now let's come to the point, our red planet, that is the Mars over there. So we are trying to reach up to the Mars, right? And Mars के पास 2 moons हैं, Phobos and Deimos. इसको रेड प्लैनेट बोलता है बिकॉज ऑफ द रेड कलर। ठीक है, इसका खुद का रेड कलर है। इसके सरफेस में इसके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 एंड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर आर देयर। वहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वेरी लेस। आप बोल सकते हैं एक हाई एल्टीट्यूड
डेजर्ट की तरह उसका एटमॉस्फेयर है, उसका सरफेस है, राइट। एंड यू कैन से अप टू दैट कि भाई उसके ऊपर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की वजह से पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता है, एंड दैट इज द रीजन कि भाई मार्स के पास क्या है, पानी नहीं है, राइट। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि ये यहाँ पर अगर हम बात करें उसके साइज की, तो अर्थ के डायमीटर से, उसके हाफ ऑफ द डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड इसका जो मास है वो अर्थ के मास से 1/10 है, एंड दैट इज द रीजन इट हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द अर्थ, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में। अब देखिए मार्स जो है वो 24 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है 1 डे में, एंड ये 687 अर्थ डेज में क्या कर लेता है, 1 रिवॉल्यूशन सन का कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज जुपिटर। सो बेसिकली जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है फ्रॉम द होल सोलर सिस्टम, ठीक है। और इसको भी ये बोला गया है कि भाई 53 कंफर्म्ड मून्स हैं, 26 अनकन्फर्म्ड मून्स हैं, ठीक है। और गैनीमेड इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, वो पहली बार ही ऑब्जर्व हुई थी, एंड इट इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ओवर देयर। जुपिटर 10 आवर्स में 1 रोटेशन करता है और 12 अर्थ ईयर्स में 1 रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन। फिर देखिए सैटर्न, सैटर्न जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जुपिटर के जैसा है, कॉम्पोजिशन में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ऑलमोस्ट साइज और मास में भी वो किसके जैसा है, जुपिटर के जैसा है, बट इट इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इट हैज़ रिंग्स, इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रिंग्स। ये जो रिंग्स हैं ज़्यादातर डस्ट और गैसेस की बनी होती हैं, ठीक। एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट, उसमें से जो गैलीलियो है, इन्होंने पहली बार इन रिंग्स को जो है ऑब्जर्व किया था। एंड यू कैन सी अप टू हेयर देयर आर 53 कंफर्म मून्स एंड 29 अनकन्फर्म मून्स। सून अगर सारे कंफर्म हो जाते हैं तो सैटर्न को मिलेंगे 82 मून्स, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा मून है। सैटर्न 10.7 आवर्स में रोटेशन करता है एंड 29 अर्थ ईयर्स में रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरेनस। ये तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसका डायमीटर अर्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स इसके अंदर 64 अर्थ्स जो हैं वो कंटेन कर सकता है ये प्लैनेट। हाइड्रोजन और मीथेन इस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज़ वाई इनका ब्लूइश ग्रीनिश कलर आपको दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीथेन गैस ओवर देयर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा और क्लियर इन्वायरमेंट रहता है। ये इस तरीके से रोटेट करता है कि इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो 40 ईयर्स तक अंधेरे में रहता है। दैट मीन्स सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। अभी तक इसके 27 मून्स जो है कंफर्म किए गए हैं, जिसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा है। यहाँ पर आप देखें कि 17 आवर्स में वो 1 रोटेशन करता है एंड 84 अर्थ ईयर्स में वो 1 रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ लास्ट वन, 8th, राइट, दैट इज द नेपच्यून। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो देखिए this is very far away and that is why you can observe it through a telescope over there, ठीक है। नेपच्यून के अकॉर्डिंग ये जो नेपच्यून है इसे रोमन सी गॉड के नाम पे रखा गया है एंड इट हैज़ 14 कंफर्म्ड मून, जिसमें से ट्राइटन सबसे बड़ी सैटेलाइट है। नेपच्यून को आइस जॉइंट कहा जाता है। रीजन इज देयर आर वेरी मच ऑफ द आइसी मटीरियल ओवर देयर, हॉट डेंस एंड आइसी मटीरियल लाइक दी वाटर, मीथेन, अमोनिया ओवर देयर। नेपच्यून 16 आवर्स में 1 रोटेशन करता है एंड 165 अर्थ ईयर्स में वो 1 रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। फिर आप देखिए एस्ट्रॉइड्स। सो व्हाट आर दीज एस्ट्रॉइड्स ओवर देयर? एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो स्टोनी छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, है ना, और वो ज़्यादातर जो हैं आप बोल सकते हैं स्टोनी प्लैनेट्स होते हैं। मार्स एंड जुपिटर के बीच के एरिया में बिल्कुल बैंड की तरह वो वहाँ पर सिचुएटेड हैं एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। every asteroid or the small planet has its own orbit, जिसमें से Ceres is the largest अभी तक हमें पता चला है एंड हमने अभी तक you can say largest जो asteroid है वो 1000 किलोमीटर तक का मिला है and the smallest one is up to the 1000 किलोमीटर in diameter, ठीक है। and now let's talk about the comets। comets के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कॉमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉमेट्स जो होते हैं वो आइसी सब्सटेंसेस के बने होते हैं एंड दैट इज द रीजन जब वो सन के पास जाते हैं तो वो आइसी मटेरियल हो जाता है मेल्ट, ड्यू टू विच दे गॉट अ टेल बिहाइंड इट, अ वेरी मच इल्यूमिनेटिंग टेल
बिकॉज गैसेज और जो आइसी मटीरियल है वो वेपराइज होते हैं, दे गॉट बर्न बाय द हीट ऑफ द सन एंड दे गेट यू कैन से गेट रिड्यूस फ्रॉम द कॉमेट, राइट। तो वो बिल्कुल एक इल्यूमिनेटिंग टेल की तरह नजर आते हैं। ये जो टेल है 500 मिलियन किलोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये टेल तब नज़र आती है जब ये सन के पास जा रहा होता है। जब ये सन से दूर जा रहा होता है तो इसकी टेल धीरे धीरे कम होते जाती है, ठीक है। ये इनको हम पहचानते ही ऐसे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा यू कैन गॉट अप टू दैट कि ये जो कॉमेट्स होते हैं इसमें से कुछ कॉमेट्स ऐसे हैं जो पीरियोडिक हैं। तो जैसे कि हैलीज कॉमेट इज़ वन ऑफ दोज कॉमेट्स एंड ये जो है वो करीब 76 ईयर्स में हमको नजर आता है। लास्ट टाइम इट वाज सीन इन 1986 एंड नेक्स्ट इट इज एक्सपेक्टेड टू पास बाय 2062, राइट। देन हमने सीखा था मिटियोर। सो बेसिकली मिटियोर्स स्टोनी और मेटालिक रॉक्स होती हैं जो कि तब पता चली कि भाई ये एग्जिस्ट भी करती हैं कब, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गलती से एंटर हो जाती है, ठीक है। सो दे एंटर इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब कभी भी जो मिटियोर्स अर्थ के पास से जा रहे होते हैं, सो बाय द ग्रेविटेशन फोर्स दे गॉट पुल्ड इनसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड जब वो पुल्ड हो जाते हैं तो दे कम इन वेरी हाई स्पीड व्हेन दे कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। बहुत तेज स्पीड से वो नीचे आते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो एयर जो है उनके ऊपर फ्रिक्शन जो है अप्लाई करती है, फ्रिक्शन बाय द एयर, ड्यू टू विच उनकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड बाय दैट इट कैचेस फायर। जब आग लग जाती है तो मोस्ट ऑफ द थिंग वी हैव गॉट अ स्ट्रीक ऑफ फायर ओवर देयर। तो हमें ऐसे कुछ लंबी सी स्ट्रीक नज़र आती है, ठीक है। ये स्ट्रीक जो नज़र आती है वो सिर्फ इसी वजह से नज़र आती है बिकॉज वो जल रहा होता है और वो कंटिन्यूसली बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा होता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। कुछ ऐसे मिटियोर्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं तो वो तो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, वो धरती की सरफेस तक भी पहुंचते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिटेराइट्स, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा था कि भाई इन्हें शूटिंग स्टार्स भी बोला जाता है एंड वी हैव सीन ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ 2 टाइप्स का है, ठीक है। मोशन पहला, एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट करे जिसकी वजह से डे एंड नाइट फॉर्म हो रहा है, एक है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन ओवर देयर। सो देखिए अभी हम क्योंकि अर्थ जो है वो क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है और इसकी जो एक्सिस है वो कैसी है वो टेढ़ी है। देखिए ये है उसकी एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट करती है। इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इस तरीके से रोटेट नहीं करती, ये करती है कुछ इस तरीके से रोटेट। सो द एक्सिस इज परपेंडिकुलर, नॉट द परपेंडिकुलर, इट इज टिल्टेड एट एन एंगल दैट इज 23.5 डिग्री। इतने एंगल परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री पर वो बेंट होती है, ठीक है, बाय दी यू कैन से। तो ये जो हमारी एक्सिस है वो एक्चुअली में टिल्टेड एक्सिस है, राइट, इट इज नॉट परपेंडिकुलर। सो आप इससे पता कर सकते हैं कि इस वजह से हमने क्या किया है, पूरी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी अर्थ है अब ये 2 यू कैन से स्फीयर्स में डिवाइडेड है। पूरी अर्थ को बीच में से आप इक्वेटर पे से अगर उसको कट कर देते हैं तो आपको 2 हेमिस्फीयर्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। फिर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं बाकी चीज़ें। देखिए क्या होता है जब सन की लाइट रेज आती हैं तो ये जिस अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है वहाँ पे होता है दिन और उसके अपोजिट फेस पर होती है रात, ठीक है, बिल्कुल यही होता है। और ये जो है कंटिन्यूसली मूव करता है। सो आफ्टर एवरी 12 आवर्स यू कैन सी दूसरे तरफ, ठीक है, ये जो नाइट वाला पार्ट है वो पूरा दिन वाले पार्ट में आ जाता है और दिन वाला पार्ट नाइट वाले पार्ट में चला जाता है। सो इन 24 आवर्स 1 रोटेशन कंप्लीट्स एंड एवरी 12 आवर्स यू आर गोइंग टू चेंज इन द डे एंड नाइट, ठीक है, आपको ये ऐसा देखने में मिलता है। ऑलराइट, इसके अलावा यू कैन सी अप टू दैट, इसके अलावा हमें 4 सीजन्स मिलते हैं, ठीक है। ये सीजन्स कैसे मिलते हैं, ये मिलते हैं सेकेंड जो हमारा मोशन है उसकी वजह से, यानी रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब देखिए हमारी जो अर्थ है वो है टिल्टेड, राइट। तो जब ये टिल्टेड है इसका रीजन ही यहाँ पर क्या है, टिल्टेड होने की वजह से वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स ओवर देयर। लेट मी टेल यू हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। दिस इज वेरियस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन,
राइट, सो दी सी यहाँ से आपको जो है पता चल जाएगा. सो देयर आर 4 पोजीशंस ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. सन की सारी लाइट रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जा रही हैं एंड एट द नून दे आर टोटली परपेंडिकुलर टू द स्फीयर. ठीक है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर समर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट उनको मिलती है. सो इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. अगर आप बी पोजीशन पर देखें तो देखो नॉर्थ में अब आ गया है विंटर सीजन और साउदर्न में अब आ गया है समर सीजन. इन दोनों स्पेस के बीच में आता है डी एंड सी, ये दोनों हैं. यहाँ पर होते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स. ठीक है, जब कभी भी समर से यानी नॉर्थ में आप ऑब्जर्व करें, नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पर यू आर गोइंग टू गेट ग्रेटर डेज. ठीक है, द लेंथ ऑफ द डेज आर ग्रेटर ओवर देयर. ठीक है, और विंटर के सीजन में जो लेंथ होता है दिन का वो काफी कम होता है. ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 पोजीशंस हैं ये स्प्रिंग और ऑटम की पोजीशन है. तो जब कभी भी समर से विंटर सीजन चेंज होता है, ठीक है, तो बीच में आता है कौन सा सीजन? स्प्रिंग सीजन. और जब कभी भी विंटर से समर चेंज होता है तो कौन सा सीजन आता है? यू आर गोइंग टू गेट दैट द ऑटम वन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर से जा रहे हैं विंटर, तो यहाँ पर देखो उसमें क्या आ रहा है? ऑटम सीजन आ रहा है, राइट. एंड यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द विंटर, साउथ में देखो विंटर से जा रहा है समर, सो इट इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग सीजन. ठीक है, तो ऐसे 4 सीजन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से हमारे पूरे के पूरे ईयर में जो हैं टर्न होते हैं, राइट. अब आप देखो ये जो सिचुएशन है, यानी जब विंटर सीजन होता है साउदर्न एंड समर सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये होता है इन जून. ठीक है, 21 जून यू आर गोइंग टू गेट द लॉन्गेस्ट डे एंड देन कम्स द ऑटम एंड द स्प्रिंग सीजन, दैट इज द डी पोजीशन ओवर हेयर. ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं समर के बाद, यानी यू कैन गेट दैट इन दी सितंबर. देन दिसंबर में सिचुएशन ये हो जाती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब जो है सर्दी हो गई है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर गर्मी हो गई, दैट समर सीजन हो गया है 22 दिसंबर. एंड देन अब कम टू दी मार्च में सिचुएशन फिर से इक्वल हो जाती है. जब ऑटम और स्प्रिंग सीजन आते हैं तो अमाउंट ऑफ द डे यानी कि साइज ऑफ द डे एंड नाइट वो इक्वल होते हैं. लेकिन जब हम समर एंड विंटर सीजन की बात करते हैं तो वहाँ पर समर जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ पे डेज बड़े होते हैं एंड विंटर सीजन में डेज छोटे होते हैं. ठीक है, सो दैट इज द इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सीजन्स. दीज एक्चुअली occur because of the tiltedness of the earth, right? Tiltedness and so there are 2 consequences for that, tiltedness and the rotation, right? So that is the thing, you are going to get 2 consequences. First of all is the changing of seasons over there and the second is the length of the day changing over there. ठीक है, so you are going to get that. ये दोनों consequences सिर्फ revolution and tiltedness की वजह से ही आपको मिलेंगे. ठीक है, ये सब हमने जो है कवर अप कर लिया था, कंक्लूजन देख लिया था कि भाई आपको हमेशा जो है ये फैक्ट पता चलेगा कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर है तो इसका मतलब अर्थ जो है वो सन के क्लोजर है. साउदर्न और ये अगर समर आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अर्थ जो है बहुत दूर है. वहीं साउदर्न की बात करें, समर सीजन में अर्थ जो है काफ़ी क्लोज है और विंटर में जो है सन से काफ़ी दूर है. ठीक है, फिर हमने लेंथ देखा था, भाई ये लेंथ जो है चेंज होते रहते हैं. ठीक है, आई टोल्ड यू समर में आपको दिन बड़ा मिलेगा और विंटर में दिन छोटा. 24 आवर्स आर नॉट चेंजिंग. ठीक है, 24 आवर्स नॉट चेंजिंग. डे अगर बड़ा हो गया तो नाइट छोटी हो जाएगी, नाइट अगर बड़ी हो गई है तो डे छोटा हो जाएगा, बिकॉज आपको 24 आवर्स चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देखे थे फैक्ट. जून 21 जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट दिन है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट दिन है. वहीं पर दिसंबर 22 जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन है और साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन है. ठीक है, एंड विच इज कमिंग सून. Now let's talk about the satellite. We have talked about the satellite like the heavenly bodies which revolve around the
प्लैनेट्स, ठीक है, जिसमें से हमारा मून एंड हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमको मिले। वी टॉक्ड अबाउट मून की भाई मून का जो सरफेस है उसमें ना तो एटमॉस्फेयर है ना पानी है, इट इज़ मेड अप ऑफ डस्ट ओनली एंड डर्ट वगैरह जो है उनसे बना होता है। काफ़ी ठंडा टेम्परेचर होता है बिकॉज इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रखता है। सन को फेस करता है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, सन से दूर रहता है तो काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। एंड वी टॉक्ड अबाउट द फेजेस ऑफ द मून बिकॉज अब ये फेजेस कैसे बन रहे हैं, वी टॉक द रीजन्स ऑल्सो, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और हम लोग हमेशा अर्थ का उसका मून का एक ही फेज देखते हैं, दूसरा फेज नहीं देखते। सो यू कैन लुक अप टू दिस, ये सन की रेज जब आती हैं, ठीक है, तो वंस फर्स्ट पोजीशन पे यू आर गोइंग टू गेट टू सी लाइक दिस, क्योंकि जो पार्ट अर्थ की तरफ है, फेसिंग द अर्थ है, वहां पर पूरा ब्लैक है, सो नो सनलाइट इज देयर, यू आर गोइंग टू गेट टू सी द न्यू मून। फिर आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पे वैक्सिंग क्रिसेंट, थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट क्वार्टर, फोर्थ पोजीशन पे वैक्सिंग गिबस, फिफ्थ पोजीशन पे फुल मून आफ्टर 2 वीक्स, एग्जैक्ट आफ्टर 2 वीक्स 1 से लेके 5th पोजीशन तक मून पहुंच जाता है। नेक्स्ट कम्स दी 6th पोजीशन वेनिंग गिबस, 7th position last quarter moon, 8th position waning crescent and the first position again that is new moon। तो after every 2 weeks जो है न्यू मून से फुल मून हो जाता है, नेक्स्ट 2 weeks फुल मून से न्यू मून हो जाता है एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द फेजेस ऑफ द मून वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है देखी, इट इज लाइक नाइस थिंग्स, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है जिसे हम यू कैन से दैट कि फुल मून को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा, राइट, एंड न्यू मून को हम लोग कहते हैं अमावस्या, व्हेन वी आर अनेबल टू सी द मून, राइट। फिर देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स आर द आर्टिफिशियल वन, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडियन ने काफ़ी सारे लाइक इनसेट, आर्यभट्ट हमने कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है, यू कैन सी ऑल दी इंडियन सैटेलाइट्स आर देयर, द लिस्ट ऑफ दैट। And next comes the total comparison between the planets, उनकी different features के बारे में comparison, we have seen that, right? So let me end this lecture here. We have revised the whole chapter. In the next lecture, we are going to do some questions, all right? So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.